अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन के बारे में। हमने देखा इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट एंड वी कैलकुलेटेड द velocities of the bodies after collision. But which type of collision? In elastic collision. And we calculated coefficient of resonance in elastic collision. As you have seen in the previous lecture, we have calculated E, coefficient of resonance or coefficient of restitution for elastic collision, and that was what? E was equal to 1. Now in this lecture we will discuss about inelastic collision in one dimension. What we can say, what is inelastic collision? Inelastic collision is that collision in which kinetic energy of the bodies does not remain same, does not remain conserved. The kinetic energy changes or there is some loss in kinetic energy before collision and after collision. That means if the two bodies are colliding, body A and body B, if the two bodies are moving in the same direction, suppose they are moving in x direction, body M1, body A has mass M1 and body B has mass M2. Body A has velocity U1 and body B has velocity U2. Both are moving in the same direction. Then they would collide only if velocity of A is greater than velocity of B. If velocity of A is the velocity of greater than B, then the two bodies will collide. That means U1 is greater than U2. And after collision, the two bodies then separate with different velocities. Firstly, they have some velocities, and after collision, they move with different velocities. The velocities are v1 for A and v2 for B. The two bodies only separate if velocity of V is greater than velocity of V2 is greater than, velocity of B is greater than velocity of A, or we can say V2 is greater than V1. Then they will separate because they are moving in the same direction. Then we can say, is this type of collision is only, we can say it is inelastic type of collision if kinetic energy after collision is not the same as the kinetic energy before collision. There is some loss in kinetic energy. But there is some loss in kinetic energy. But in collisions, one thing remains conserved in both types of collisions, in elastic collision and also in inelastic collision. What is this? That is law of conservation of linear momentum. Linear momentum remains conserved. The linear momentum of the two bodies before collision is equal to linear momentum of the two bodies after collision. Linear momentum remains conserved, but kinetic energy does not remain conserved in inelastic collision. That means we can say total momentum after collision होगा बराबर किसके? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. और वी कैन से मोमेंटम किसके बराबर होता है?
मोमेंटम होता है बराबर मास इंटू वेलोसिटी। दैट मीन्स हम इसकी भी लेंगे मास इंटू वेलोसिटी, इसका भी मास इंटू वेलोसिटी, इसका भी और इसका भी। फिर इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। फिर हम बोलेंगे सम ऑफ द linear momentum of both the bodies is equal to sum of the momentum of these two bodies, or we can say m1 u1 कौन सा हुआ, ये वाला m1 u1 प्लस m2 u2 कौन सा वाला, b वाला m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 ये वाला है ना, प्लस m2 v2। That means total linear momentum before collision is equal to total linear momentum after collision, ये सेम रहेगा। तो ये हुआ अगर हम देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये तो हुआ इन इलास्टिक कोलिजन, कंजर्व नहीं रहेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब अगर हम बोलेंगे अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, दैट मीन्स इसकी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फिर खत्म हो जाती है। दैट मीन्स जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो जीरो होगी। पहले ये चलते थे विद सम रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी वजह से ये कोलाइड करते हैं, एंड आफ्टर कोलिजन देयर रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स v2 minus v1 becomes zero. That means both the bodies are moving with the same velocity. या तो दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी के साथ चल रही है तो v2 minus v1 बनेगा जीरो, या तो दोनों बॉडीज रेस्ट पर आएंगी तो उसमें भी v2 minus v1 आएगा जीरो, या दोनों रेस्ट पर आएगी या दोनों चल रही है विद द सेम वेलोसिटी। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी उसमें भी जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जीरो होगा, ई क्या बनेगा, ई बनेगा जीरो, क्योंकि ई किसके बराबर होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक, तो अब हम बोलेंगे यहां पर अगर हम लेंगे अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दैट मीन्स E is equal to zero, or we can say relative velocity after collision is equal to zero. तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, if the two bodies are moving in the same direction and body A has mass m1 and is moving with velocity v1, body B has mass m2 and is moving with velocity u2, and both the bodies are moving in the same direction, then the two bodies will only collide if u1 is greater than u2. That means velocity of A is greater than velocity of B, and after collision when they collide, what happens, the two bodies move with the same velocity. टू बॉडीज, अगर ये दो बॉडीज हैं जो कोलाइड कर रही है तो कोलिजन के बाद ये आपस में एक साथ चल रही है विद द सेम वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी डिफरेंस होगी तो ये एक साथ नहीं चलेगी। क्योंकि इनकी वेलोसिटी सेम है तो ये एक ही साथ चल रही है। जब कोलिजन हुआ, ये आपस में टकराए तो टकराने के बाद ये साथ साथ चलने लगी, तो इसकी वेलोसिटी आएगी टोटल वेलोसिटी v, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी v है, सेम है वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है ये क्या है, v माइनस v बनेगा जीरो। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बन गई तो e बन गया जीरो। दैट मीन्स इट्स परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आया आपको ठीक समझ? तो अब हम बोलेंगे इसमें क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में एक ही चीज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम वही लेंगे, यहां पर हम लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा m1 v प्लस
m2v। दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो यहां आएगा v और v, और वी कैन से m1 u1 प्लस m2 u2 आएगा बराबर m1 प्लस m2, कॉमन निकलेगा v। ठीक। लेकिन यहां पर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं अगर ये बॉडी इसके साथ टकराती है और इसके बाद ये कोलाइड करते हैं और ये चलते हैं एक साथ। अब यहां पर हम लेंगे अगर यहां पर जो u1 है ये हम कोलाइड कराते हैं किससे, u2 से, और u2 हम रखते हैं रेस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी को टारगेट करते हैं, तो हम करते हैं टारगेट यहां पर m2 को किससे, m1 से, और m2 रखते हैं रेस्ट पर। दैट मीन्स m2 u2 होगा बराबर 0, u2 होगा बराबर 0। तो अब हम देखेंगे यहां पर क्या बनेगा, क्योंकि हम क्या लेते हैं, हम नहीं लेंगे दोनों चल रहे हैं एक ही साथ, हम बोल देखते हैं अगर ये बॉडी यहां पर है, ये बॉडी यहां पर है रेस्ट पर, u2 है बराबर 0, और फिर हम करते हैं u1 से इसको टारगेट। ठीक, कोलाइड करते हैं, इसको कोलाइड कराते हैं किसके साथ, u1 के साथ। u1 को यहां से एक्सेलरेट करते हैं इसकी डायरेक्शन में, तो हम छोड़ते हैं इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये आपस में कोलाइड करता है। तो हम बोलेंगे यहां पर m1 u1 ये बनेगा 0, क्योंकि u2 है 0, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा v इज इक्वल टू m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमें निकली रिलेशन किसकी, जो आफ्टर कोलिजन जो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी होगी, आफ्टर कोलिजन जो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी होगी वो हम लेंगे, लीजिए हमने यहां पर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, तो हम बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो u2 वाला है, जो बॉडी b है, उसकी वेलोसिटी 0 है, जो रेस्ट पर है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 बनेगी। क्यों, क्योंकि u2 बनेगा 0, u2 की वजह से सारा टर्म बनेगी 0, तो यहां पर बचेगा सिर्फ 1/2 m1 u1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसी की है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगा फिर, वो होगा 1/2 m1 प्लस m2 होल v स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों चल रहे हैं एक ही वेलोसिटी के साथ, तो हम दोनों को लेंगे एक साथ मास, हम कंसिडर करेंगे एक ही बॉडी है, तो दोनों का एक ही मास होगा m1 प्लस m2 कंबाइन मास इंटू गोस v2 स्क्वायर। और समझ, तो ये आएगा v स्क्वायर। तो इसके बाद आएगा हमें क्या होगा, हम लेंगे यहां पर इनकी डिफरेंस, हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हुई, कितनी कम हुई। तो हम लेंगे यहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2। आप मैंने ये है काइनेटिक एनर्जी 1 और ये है काइनेटिक एनर्जी 2, तो वो हम लेंगे यहां पर 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस दूसरा क्या आएगा
m1 ये वाला आएगा ना, 1/2 m1 प्लस m2 होल v स्क्वायर। मगर हमने यहां पर निकाला था v का वैल्यू, यहां पर निकाला था ना v का वैल्यू हमने, हम यही वाला यहां पर है v स्क्वायर, देखिए आप दिख नहीं रहा है। तो हम ये वाला v का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो फिर हम देखेंगे ये क्या बनेगा। तो ये बनेगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2, सॉरी ये माइनस है इधर। तो v का वैल्यू हम देंगे यहां पर v स्क्वायर का वैल्यू, तो ये बनेगा m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। आया? तो ये क्या आया, देखिए ये आया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो माइनस हमने किया 1/2 क्या था स्क्वायर, 1/2 m1 प्लस m2 होल स्क्वायर v स्क्वायर। तो v स्क्वायर का वैल्यू हमने यहां से दिया, ठीक। तो ये हमने यहां पर पुट किया, तो ये निकला ये है v स्क्वायर, v का वैल्यू। तो अब हम करेंगे कैलकुलेट ये वाला, तो ये बनेगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस, इसमें हो जाएगा कैंसल m1, जो ऊपर का m1 प्लस m2 है, और जो नीचे का m1 प्लस m2 है वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, सॉरी ये प्रोडक्ट में है। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर, सॉरी तो ये गलत हो गया इधर, मुझे एक टर्म यहां पर भूल गया मैं। हमें क्या है इधर E1 माइनस E2, सो वो हो गया 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस हो गई ये टर्म 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, वो बन गया 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस बनेगी ये टर्म। तो हम यही लाएंगे अब इधर, ठीक। तो आप ऐसे देखिए, और मैं लिखूंगा ये इधर, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस आएगा 1/2 m1 प्लस m2, ठीक। और यहां से आएगा m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ये रखेंगे ऐसे ही और ये करेंगे कैलकुलेट। इसमें ये और इसकी टर्म जब हम स्क्वायर देंगे ऊपर अलग से नीचे अलग से, तो इसमें से एक स्क्वायर और ये टर्म हो जाएगी कैंसल, तो हमें आएगा m1 u1 स्क्वायर, ये भी डिवाइड बाई 2is m1 प्लस m2, ठीक आएगा ना यही। जो अगर हम स्क्वायर इसको अलग से देंगे इसको अलग से देंगे, तो इसमें से स्क्वायर और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इसके बचेगा 1/2, तो इधर आया नीचे m1 प्लस m2, ठीक। तो इसमें से फिर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है। तो ये बनेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ m1
प्लस m2। ये निकलेगा यहां से जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये निकलेगा इधर। तो ये बनेगा फिर m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। तो ये हमें निकलेगा, क्या निकलेगा, ये हमें निकलेगा जो लॉस होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमें ये निकला जो E1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 है, जो काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आई, कितनी कम हुई काइनेटिक एनर्जी, वो हमें निकला। और यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर क्या किया हमने सिंपली सारा सिंपल मैथमेटिक्स किया। क्या किया हमने, पहले v का वैल्यू निकाला फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस निकाली और वहां पर वैल्यू दिया उस v का जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। उसके बाद हमने सिंपली क्रॉस मल्टीपल किया। क्रॉस मल्टीपल कैसे, इसके साथ किया इसको मल्टीपल, माइनस इसके साथ किया इसको मल्टीपल, डिवाइड बाई इसको किया इसके साथ। कैसे, m1u1 इंटू, अगर हम ये 2 देंगे दोनों को मल्टीपल, तो m1u1 स्क्वायर इंटू m1, वो क्या बनेगा, ये ट्वाइस है तो ये बनेगा ट्वाइस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, जो m1 हो जाएगा ना स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। फिर है प्लस, तो ये बनेगा ट्वाइस आएगा, ट्वाइस m1 m2 u1 स्क्वायर, ठीक। माइनस माइनस आया इधर, तो ये आएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, इधर क्या है 2, ठीक। तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 इंटू 2 हो गया 4m1 प्लस m2। ऊपर सबको 2 है वो कॉमन निकलेगा और नीचे भी एक 2 कॉमन निकलेगा, वहां बचेगा 2। समझ आया आपको, ठहरो मैं दिखाता हूं यहां पर। तो ये बनेगा एक्चुअली ट्वाइस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 स्क्वायर, ट्वाइस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, डिवाइड बाय बनेगा 4 टाइम्स m1 प्लस m2। यहां से निकलेगा 2 2 और 2 कॉमन, और यहां से भी निकलेगा 2 कॉमन, तो 2 और 2 कटेगा, ये क्या बचेगा, यहां पर 2 नहीं रहेगा और यहां पर 2 बचेगा, तो वही 2 बच गया इधर, वही 2 बच गया इधर, ठीक। तो इसके बाद हमने सिंपली ये कैलकुलेट किया, क्योंकि ये और ये कटेगा तो यहां बच गया ये, क्यों ये माइनस है ये प्लस है, ये कटेगा, यहां बच गया ये और डिवाइड बाय ये। तो ये हमें निकला जो हमें लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि ये लॉस क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये लॉस क्या है, ये पॉजिटिव निकला हमें, जो डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी की ये पॉजिटिव निकला हमें। इसका मतलब ये है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी और जो वो ज्यादा थी, और जो हमने काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी वो कम होगी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2। दैट मीन्स जो कोलिजन होगा, इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, लॉस होगी। जो कितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उस वो ज्यादा होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होगी वो कम होगी। तो ये हमें देखना था। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कुछ देखेंगे। खुदा हाफिज।